اس کی ہم چوتھی آیت کا مطالعہ کریں گے۔ چوتھی آیت سے شروع کریں گے۔ لکھا ہے، خداوند میں مسرور ہے اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ وہ تیری رات بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا۔ خداوند میں مطمئن رہ اور صبر سے اس کی آس رکھ۔ اس آدمی کے سبب سے جو اپنی راہ میں کامیاب ہوتا ہے اور برے منصوبوں کو انجام دیتا ہے، بیزار نہ ہو۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ میرے عزیزو، خداوند کے مقدس کلام میں آج ہم سیکھ رہے ہیں، خداوند میں مسرور ہے اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ کیا ہے؟ خداوند میں مسرور۔ میرے عزیزو، خداوند میں مسرور، مگن ہو جانا۔ بہت سے لوگ آج خداوند میں مجبور ہو کر آتے ہیں خداوند کی حضوری میں دعا کرنے کے لیے اور یا بائبل پڑھنے کے لیے، لیکن آج مقدس داؤد، جس کے نام کا معنی پیارا ہے اور جس کو خداوند کہتے ہیں، خدا نے کہا کہ یہ مجھے میرے دل کے موافق مل گیا، اور وہ کہتا ہے کہ خداوند میں مسرور ہے۔ جو لوگ خداوند میں مسرور ہو جاتے ہیں ان کے دل کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ پہلی بات تو مسرور ہونا ہے، مگن ہو جانا، اس میں کھو جانا ہے۔ آج بہت سے لوگ عزیزوں مسرور ہی تو نہیں ہیں، رسمی دعا، رسمی بائبل سٹڈی، رسمن سارے کام خدا کی حضوری میں آنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن عزیزوں وہ کہتا ہے خداوند میں مسرور۔ تجھے اور کسی چیز کا پتہ نہ ہو، مگن ہو جا، مسرور ہو جا۔ سرور، خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا، کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ جو مسرور ہو جاتے ہیں ان کا رابطہ خدا کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور جب خدا کے ساتھ ان کا رابطہ جڑ جاتا ہے تو پھر وہ جو ان کا ازلی اور ابدی باپ ہے ان کے دلوں کو جانتا ہے۔ اس وقت میرے بیٹے کو یا میری بیٹی کو کیا ضرورت ہے، طلبگار کس چیز کا ہے؟ خداوند میں مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ جب مسرور ہو جائیں گے تو پھر آپ کو کہنا نہیں پڑے گا خدا فلاں چیز مجھے چاہیے، خدا فلاں کچھ مجھے چاہیے۔ آپ کو کہنا نہیں پڑے گا، بلکہ لشکروں کا خدا جو آپ کا آسمانی باپ ہے وہ آپ کے کہنے کے بغیر ہی ساری چیزیں آپ کو مہیا کر دے گا، آپ کو لطف اندوز ہونے کے لیے برکتیں بخشیں مہیا کرے گا۔ ہیلیلویا۔ سو میرے عزیزو، خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی، آپ خداوند میں مسرور رہیں۔ آپ جب خداوند میں مسرور ہو جائیں گے تو پھر خدا جو دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے،
जो ख्यालों को जानता है, जो हमारी सोचों से पहले ही वाकिफ है, जो हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हम किन चीजों के मुख्ताज हैं, वो मुरादें पूरी करेगा। और लिखा है अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे। मसरूर होकर करना क्या है? बहुत से लोग दुआ तो करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन कहते हैं फिर भी हमें अपने तरीके से काम करना चाहिए। खुदा पर भरोसा नहीं है, दुनिया पर भरोसा करते हैं, अपनी दौलत, अपनी शोहरत, अपने जोर पर भरोसा करते हैं। लेकिन इसी से बाइबल मुकद्दस कहती है खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे। अपनी राह क्या कर? खुदावंद पर छोड़ दे। अपना पार यहोवा ते सुट आपे वो संभाले। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। भरोसा ते करके खुदा ते देखो। दुनिया ते भरोसा करने आ, हर चीज ते भरोसा करने आ जड़ियां मादी चीजां ने, लेकिन खुदा ते भरोसा बहुत घट लोग करते हैं। पता नहीं खुदा ने करना कि नहीं। जो ही दुआ करने आ ते कहने पता नहीं करना कि नहीं, फिर कुछ भी नहीं होता। क्योंकि शक करने वाला शख्स समुंदर की लहर की मांद है जो उछलती और बहती है। ऐसा शख्स ये ना समझे मुझे खुदावंद से कुछ मिलेगा। शक नहीं, अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे, उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। वो आपके हर काम से वाकिफ है, आपके घर से वाकिफ है, आपकी औलाद से वाकिफ है, आपके काम काज से वाकिफ है। वो आपको हर चीज मुहैया करने वाला है। जो लश्करों का खुदा है, जो कौमों कबीलों का खुदा है, वही सब कुछ करेगा। वही सब कुछ करने की कुदरत रखता है। जो दुनिया नहीं कर सकती वो लश्करों का खुदा कर सकता है। हालेलुया। वही सब कुछ करेगा। और लिखा है वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह, तेरी रास्तबाजी को क्या करेगा जी? नूर की तरह। रास्तबाजी तो है लेकिन दिख नहीं रही, नजर नहीं आ रही। अजीजों, तेरी रास्तबाजी को क्या करेगा? नूर की तरह। जब रास्तबाजी होगी तो फिर नजर आएगी, फिर नजर आनी चाहिए। रास्तबाजी को क्या करेगा? नूर की तरह। नूर में कुदरत है। जब जितनी मर्जी हम रोशनाइयां कर लें, लेकिन जो सुबह को सूरज निकलता है, सुबह की रोशनी होती है, वो फर्क होती है। चांद की जितनी मर्जी रोशनी क्यों ना हो, लेकिन सूरज की रोशनी कुछ फर्क है, क्योंकि चांद सूरज की रोशनी लेता है। अजीजों, हम खुदा से रोशनी लेते हैं। ईमानदार जो हैं खुद से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब खुदा डायरेक्ट उनको रोशन कर देता है, फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती। फिर घराने शादमान हो जाते हैं, जिंदगियां बहाल हो जाती हैं, कौमें तब्दील हो जाती हैं, घराने और खानदान उसमें तरक्की पजीर होते हैं। वो जिस चीज को हाथ लगाते हैं वो बाबरकत होती है। वो बोलते हैं तो खुदा का जलाल जाहिर होता है। वो हर काम में उसका जलाल जाहिर करते हैं। अजीजों, अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे। खुदावंद में मसरूर है तो वह तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। और अगली बात लिखी है, अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। भरोसा करना खुदा ते, दुनिया ते भरोसा करने, लेकिन खुदा ते अजीजों भरोसा करना सीखो। दुनिया वाले शायद आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन लश्करों का खुदा जो आपका अजली और अब्दी पिता है, वो कभी आपको शर्मिंदा नहीं होने देता। वो हर सुबह आपको अच्छी नेमतों से मालोमाल करता है।
अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कुल कर, वही सब कुछ करेगा। वो तेरी रासबाजी को नूर की तरह, तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। हक होए साडा तो इब्लीस छीन के ला जाए। सारी बरकतें ईमानदारों के मुकद्दसों के लिए हैं, खुदा ने इंसानों के लिए बनाई हैं। लेकिन जब इंसान खुदा से अपना राबता तोड़ लेता है, खुदा के बरखिलाफ काम करता है, तो फिर होता क्या है? फिर खुदा क्या करता है? खुदा मेरे अज़ीज़ों क्या करता है? खुदा के हाथों में आना इज्जत की बात है, लेकिन खुदा के हाथों में पड़ जाना बड़ी हौलनाक बात है। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे, वो तेरी रासबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। हक दोपहर की तरह, दोपहर नूं सब कुछ ही नजर आता है, दूर दूर तक वाजिया चीज़ां नजर आंदियां ने। पता चल जाएगा कि खुदा वो बरकत भी हमारे लिए रखता है, वो बरकत भी हमारे लिए है। सारी बरकतें हमारे लिए हैं, जमीन की हो या आसमान की, जमीन की हो या आसमान की, देखी हो या अनदेखी, सारी चीजें उसने अपने बेटे और बेटियों के लिए बनाई हैं, जिसमें उसके बेटे बेटियां लुत्फ अंदोज हों और बरकत पाएं। हालेलुया। सारी चीजें उनके लिए हैं, उनको दूर से नजर आता, पता चलता है कल हमें क्या मिलेगा, परसों हमें क्या मिलेगा, ये हमारे बच्चे क्या करेंगे, क्या बनेंगे। मेरे जब हम खुदा में होते हैं तो फिर हमें पता होता है हमारा खुदा हमें सर बनाएगा, टेल नहीं। अजीजों सुनिएगा, वो तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। खुदावंद में मुतमिन रह और सबर से उसकी आस रख। खुदावंद विच मुतमिन हो जा, सबर नाल आस रख। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी, तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहाजारी। कहता है वो खतरे ते टोए ते खोबियां चो, ਜਦੋਂ ਹੀ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਨਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਖਤਰੇ ਤੇ ਟੋਏ ਤੇ ਖੋਬਿਆਂ ਚੋਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਬਾਹਰ, चट्टान उत्ते रखे पैर मेरे, सो बख्शी कदमां नूं उस तो वारी, क्योंकि उसने मुझे बख्श दिया है। उसने मेरे चीकड़ पर, मेरी गंदगी पर नगाह नहीं की, मेरी हालत पर नगाह नहीं की, मेरे हालात पर नगाह नहीं की, क्योंकि अपने बेटे के खून के सबब से मेरे अज़ीज़ों हमें बख्श लिया है। दाऊद कहता है कि उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहाजारी। उसने उसकी गंदगी पर नहीं, उसके दिल पर नगाह की है, क्योंकि दिल के मुआफिक मिल गया था। हमारे पर जब नगाह करता है तो हमें क्या देखता है? हमें अपने बेटे बेटियां देखता है, क्योंकि हम यीशु मसीह को कबूल करने के बाद हम उसमें नजर आते हैं और हम उसके बेटे बेटियां नजर आते हैं। हम पर यीशु का लहू नजर आता है, हम पर पकीज़गी नजर आती है, हम पर उसका जलाल नजर आता है। हमारी जिंदगी में जब उसका कलाम नजर आता है तो फिर हम जाने पहचाने जाते हैं, फिर हम उसमें और वो हम में नजर आता है। हालेलुया। खुदावंद में मुतमिन रह और सबर से उसकी आस रख। जिस तरह दाऊद कहता है मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजार, ओ यहोवा दी इंतजारी करदा सी। अज सानू खुदा दा इंतजार यही करदे नहीं, तावले बन जाने बड़े तिखे। अजीजों हम खुदा का इंतजार करें। खुदा हमें बरकत देना चाहता है, खुदा हमें बहाल करना चाहता है, खुदा कौमों को बहाल करना चाहता है। अजीजों खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे और